Option Yes, please. Question 1. B. Option A. Option B. Option B. B Rajonno. Bombay. B Bombay. B One B Bombay. Bombay is the right B answer. How many Bombay. of you got Option B, Pratap. Pratap and who else? Akshay Agarwal. Arav Sureka. Sir, Naman. Obviously, B is right because you'll want to have COOH as the principal functional group. And if you go like 1, 2, 3, 4, 5, 6, this will become a substituent. So 5-oxo or 5-keto is a very common, substituent name for a ketonic group acting as a substituent. 2-methyl 5-oxo. Again, it's because M comes before M, O. 1B Bombay. We'll want to move on. Question 2. Option C. Rajonno. Option Sir, C, Pratap. Option C. Akshay Saraf. Option A. So I'm getting some people Option telling me A. Akshay Agarwal. there seems to be some confusion between A and C. Sir, A. Ayan Joshi. I mean, two things. Ayan Joshi is saying C. Two things which is obviously unambiguous कि ये bicyclo है और ये spiro है. ये bicyclo है और ये spiro है. That goes without saying. It's only about time you get to know about this compound, which is called furan. It's a very popular aromatic compound. It's only about time you know about aromaticity. Maybe in a week or so you'll know this. And non-planar heterocyclic compound ये non-planar है because यहाँ सारा का सारा sp2 होगा वो planar हो जाएगा. हेट्रोसाइक्लिक इसलिए क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन है. हेट्रोसाइक्लिक बिकॉज सारा कार्बन नहीं है. एंड आई थिंक A3B4 इट्स ऑप्शन C Calcutta. 2C Calcutta. 2C Calcutta. You have a doubt, you can stop me, else we'll want to go past all of it, as I told you, at a faster pace. Question 3, I have told you Sir, why non-planar? Yes, please. Sir, why non-planar? Now this is non-planar because all carbon and even oxygen here is sp2. I told you. अच्छा ये क्या? ये प्लेनर है और यहाँ पर तो sp3 कार्बन है ना. sp3 कार्बन प्लेनर थोड़ी होगा. sp3 है, नॉर्मली तो sp3 होता है ना. sp3 तो नॉन प्लेनर ही होगा. sp2 है, यहाँ पर सारा प्लेनर है. sp2 होने से वो एरोमेटिक होता है. There's something you learn in due course, but this non-planar non-naturally because it's sp3. Thank you, sir. By the way, Arav Sureka. so we'll want to move on. Please stop me. Exactly like Arav did right now. You have a doubt somewhere, you can certainly stop me. Question 3. Option B, sir. Option B. Akshay Agarwal. B. Arav Sureka. Option B. Now there's again something which I've discussed, and you had a very weird kind of mnemonic which I gave you. But one way or the other, we have to go past all of it. And naturally, B Bombay seems to be the right answer. Tell me your names. How many of you got it right? Arav Sureka. Question 4. Option C. Akshay Saraf. C. Option D. Rajonno. Yet again, I'm getting two different answers. What is the final answer for question 4? Option D. I think there's something which is missing in the question. Is there a portion which is missing in the question? Or it's like this There only? is. There's a nitro. Naturally, aldehyde will be the principal functional group. So, if everything is as good as it looks, I certainly want to number it from the terminal group. There is the principal functional group. Yes, CHO है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And if this is 7, 6 पे nitro है, 3 पे oxo है, 4 पे methyl है और 4 पे ही ene है. So hep 4 enal is something like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 1, 2, 3, 4. यहाँ पे जो double bond होता है, you can always club a pi bond with a double bond.
and you can always call it a hep4 enol. So this I think is understood by everyone. Rest is putting them in the right alphabetical order, which is M N O. I find C right. Anyone with an objection can obviously tell me. You have a doubt, you have a question, you can stop me, but I think it's C, Calcutta, right? बच्चे लोग हाँ ना बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you have a doubt, it's not like I want to complete all of this in a haranskaram. You have a doubt, you can obviously stop me. So far, so good, I believe. Next one. Option D, Rajonno. Option D, Akshay Agarwal. अब ये ना Option एथिलीन B. डाइक्लोराइड ना इथाइलिन डाइक्लोराइड थोड़ा समझना पड़ता है कि ये ऐसा कंपाउंड है. ये थोड़ा समझना पड़ता है कि ऐसा कंपाउंड है. यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी होगा 1,1 डाइक्लोरोइथिल. हाउ मेनी वी गॉट 5 का डी राइट? Rajonno. Akshay Agarwal. Raman Barwani. अच्छा, somebody was talking about question 6 today. Somebody was talking about it. Maybe I forgot to address this in the Howrah batch. I promised I'll address this in the Howrah batch. But please tell me if one of you, were concerned about this carbon getting pentavalent. This is a unique way of, representing a compound. This is as good as this one. This is a little different. यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जब ट्रिपल बॉन्ड आता है ना, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन अलग अलग है. ये एक अलग एक तरीका है. आइडियली इट शुड हैव बीन लाइक दिस. आइडियली इट शुड हैव बीन लाइक दिस. सी, आइडियली इट शुड हैव बीन लाइक दिस. आइडियली इट शुड हैव बीन लाइक दिस. यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. तो 1 2 तीसरा नंबर कार्बन, 1 2 तीसरा नंबर कार्बन, और उसके बाद चौथा नंबर कार्बन, और उसके बाद इट शुड हैव बीन लाइक दिस. यू विल वांट टू क्विकली एडजस्ट फॉर दिस. Please take a note of it. I hope I am being understood. This is as good as this. When you given a compound like this, this is not a 2-carbon compound. It's actually a 4-carbon compound. This is one way of representing butene. तो यहाँ पर भी ना ये कार्बन अलग है. यहाँ पर ये conventional, bond line form नहीं है. But now I think I am being understood. And every time you have triple bond and double bond in equivalent position, किसको preference देते हैं भाई? Double bond. Double bond. Double bond को preference देते हैं because E comes before Y. So if I go like 1 2 3 4 5 and 6, please go ahead. What's the right name according to you? C. 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 यहाँ पर ना E और Z को लेकर के don't get very worked up. E और Z nomenclature में पढ़ाऊंगा after geometric isomerism. Once I am done with geometrical isomerism, I'll talk about E and Z. But even if you do not know E and Z, I think even if you do not know E and Z, if you for the time being ignore E and Z, EZ nomenclature I'll do after geometrical isomerism. Again, within a 1 month, you'll be good at it. Even if you ignore E and Z, only with this particular part of the option you could have gone with C. 6C Calcutta, how many of you got 6C Calcutta right? R of Sureka. Sir, Naman Akshay Barwani. Agarwal. मेसिटाइल ऑक्साइड अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो ना 12 का कोई भी अपना सीनियर से पूछना जो अच्छा बच्चा है. ये 12 में एकदम एक रेगुलर एल्डोल का प्रोडक्ट होता है. 2 मोल ऑफ एसीटोन वुड कंडेंस लाइक दिस. तो आइडियली 70. मेसिटाइल ऑक्साइड 11 में ही ऐसे देना होना चाहिए. 70. So now if I tell you how mesotyl oxide looks like, I think you can give me the right answer. D, कोई बार D बोल रहा है. Who is D? Tell me your name. Shubham Agarwal. R of Sureka. Naturally 2 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप डालेंगे, 3 नंबर पर डबल बॉन्ड आएगा. इट विल बी पेंटेन 2-on, एंड पेंटेन 2-on को हम लोग पेंट 3-in-2-on ऐसे बोल देंगे बिकॉज यहाँ पे 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है. 4 number पर मिथाइल है. D, Delhi looks absolutely all right. How many of you got it right other than Arav and Akshay Agarwal. Sir, मैंने ना बहुत ज्यादा एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है बिकॉज बहुत ज्यादा एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर एनसीईआरटी में भी नहीं दिया. और ऐसा नहीं कि ये बहुत कोई अमेजिंग चीज है. मतलब ये सिंपल सा फैक्ट है कि अगर CH2 जैसा फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो मेरे को उसको बेंजल्डिहाइड ही बोलना पड़ेगा.
अगर CHO जैसा कंपाउंड है तो मेरे को उसको बेंजोल्डिहाइड ही बोलना पड़ेगा. The only way I can number it from left to right or right to left. Left to right, I think I'll get, if I call it position 1, 2, 3, 4, 5, and if I number it Yes, from C. right to left, so Option clockwise Option is C. 2, 4, C, 5, Akshay Agarwal. clockwise is 3, 4, 6. So the C, smallest number rule will tell me 2, C. 4, 5. I'll write a mine first because that's the alphabetical order. How many of you are going with C, Calcutta? Arav Raju Sureka. Nu. Akshay Agarwal. Naman Barwani. Pratap. Sir, I'm Akshat telling you Saraf. one more time, if there is any element of doubt, you can stop me. If there is any element of doubt, you can stop me. Only if you are happy with it, you will want to move on with it. You have a Can you doubt, you can explain tell once me. again? Any day I'll call it benzaldehyde as the mother compound because CHO is the functional group attached to the ring. Now I can either go clockwise or I can go anti-clockwise. Clockwise, I'm getting position like 2, 4, 5. Had I gone anti-clockwise, I would have got position like 3, 4, and 6. Now 3, 4, and 6 is a bigger number than 2, 4, and 5. So I want clockwise, I'll not go anti-clockwise. And again, after having gone clockwise, I'll write amino ka A naturally before hydroxymethyl ka H, naturally before nitro ka N. It's A, H, N in the alphabetical order, and eventually C is the right answer. बच्चे लोग 9, a Okay, sir. functional group, terminal functional group, terminal functional group, a terminal, this is again in my video 3 of the nomenclature, a terminal functional group, and the only way you can name it is cyclopentane carboxylic acid. If you remember, I've spoken about it, Option B. Sir, We call option it B, sir. cyclopentane carboxylic acid. And naturally, if this is the functional group, you'll want to number it like 4. B before methyl. So 4 bromo 2 methyl should be the right answer. How many of you Option got B. 9 ka B right? How many of you got 9 ka B right? Sir, Akshat Saraf. Also, please keep a count of how many you got right. Because the more number of times you're telling me your name, and eventually if you tell me that you had the maximum attempt or the maximum correct, that effort is going to be rewarded. So please keep a check of how many you're getting right. 9B Bombay, one more time. How many of you got 9B ka right? Anubhav. Arav Sir, Naman Sureka. Barwani. Akshay Agarwal. Akshat Saraf. We'll want to have maximum. Good job. We'll have to have maximum functional groups in the chain. So we'll want to include both COH and CHO. अब COH CHO में फंक्शनल ग्रुप तो यही है, तो इसका नाम तो ओइक एसिड ही होगा, हेक्सानोइक एसिड ही होगा. और वापस 3 और 6 में यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे 1 से काउंट करेंगे तो इसको हेक्स 3 इनोइक एसिड बोल सकते हैं. Option हेक्स C. 3 इनोइक एसिड से आप तो C या तो D होगा. और लॉन्गेस्ट चेन में जाऊंगा तो विश्वजीत, आज जब तुम मेरे से जब पूछ रहे थे ना हावड़ा में, मैं एक्चुअली उतना ध्यान से देखा नहीं, बट द पॉइंट इज अगर CHO को मैं ले लूंगा चेन के अंदर में तो ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, देयर इज अ पोजीशन इन द ओवरऑल चेन, तो इसको मैं फिर ऑक्सो ही बोलूंगा. 6 होना चाहिए आंसर मेरे को लग रहा है. हाउ मेनी पीपल गॉट 10 का C होना चाहिए. आई रिपीट, 10 का C Shubham होना Agarwal. चाहिए. How many? Vishwajit Das. Akshay Agarwal. Akshat Saraf. 11 is as good as 11 is as good as 11 is as good as trying to get maximum pi bonds into the chain. और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे नेचुरली. 11 is a relatively simpler question. Please go ahead, tell me what is the name which you got for this compound. 11. Option B. Option B. Akshat Saraf. Option D. Shubham Option Agarwal. D. Option D. Somebody Option saying B D. Bombay, somebody saying B Delhi. Sir, B Bombay. Option B D, Bombay. Akshay Agarwal. Is it Bombay or Delhi? How many people say B Bombay? Sir, Akshat Saraf. B Bombay. Naman Barwani. Bombay Anubhav. And how many people say D Delhi? Arav Sureka, Shubham D Delhi. Agarwal. Option D. Sir, I am. Any day, everything else remaining the same. Exactly मैं ये बोल रहा हूँ दोस्त कि E को हम लोग Y के पहले रखेंगे. How on earth B? How on earth B? जो लोग B बोल रहे हो ना, they can actually speak to me right now. What's going wrong, man? This was a free scoring opportunity. Everything else remaining the same. You'll want to give E a smaller position than Y. Equivalent positions है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे. I hope I'm being understood. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. Yes, sir. Yes, sir. How many people got 11D right? 11D right. This was a simple case. How many people got 11D right? Shubham Akshay Agarwal. Agarwal. Arav Sureka. In case of 12, nitro, chloro और मिथाइल तीनों का तीनों सब्स्टिट्यूएंट है. देखो ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग फेनॉल बोल रहे हैं.
या हम लोग टोल्यूइन बोल रहे हैं, या हम लोग इसको बेंजल्डिहाइड बोल रहे हैं, या बेंजोइक एसिड बोल रहे हैं। जब रूट नेम इसका बेंजीन है, so I'll keep it simple. I'll go with the combination which is the smallest combination. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये ना एक बेसिक फंडा है जो समझना होगा कि अगर मान लो CHO होता तो हम लोग उसको फंक्शनल ग्रुप मान करके वहां से काउंटिंग चालू करते, पर जब तीनों का तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट है और रूट नेम यहाँ बेंजीन ही है, तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कहाँ मेरे को सबसे छोटा नंबर मिलता है, 541 और 214 Sir, और option D. 341। Sir, option B. ऑप्शन बी, बी बॉम्बे, आर ऑफ सुरेखा। Sir, B Bombay, Akshat sir. बी Option बॉम्बे, B. राजन। I think even Anubhav said B Bombay. Yes, sir. तो यहाँ पर देखो क्लोरो मिथाइल नाइट्रो तीनों को सब्स्टिट्यूएंट बोला है, तो 43718 549110, the way we have 2147 as the smallest sum rule, 2518, so I'll go with B Bombay. How many you got B Bombay? One more time. आर ऑफ सुरेखा। Sir, Anubhav. Sir, Akshat sir. Sir, why not option C? ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर टोटल सम रूल 20 से ज्यादा है। ये वन नाइट्रोबेंजीन नहीं लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर ये कोई बेंजल्डिहाइड नहीं है कि उसको वन बेंजल्डिहाइड लिखूंगा। ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट ही है, नाइट्रो भी एक सब्स्टिट्यूएंट ही है। इसको अगर मेन कंपाउंड तो बना लिए तो गड़बड़ की है। Okay. 13 सी, Option D. Option D. Option D, Delhi. ये सबका राइट होना चाहिए, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है। टर्मिनल ग्रुप को हमेशा हम लोग काउंटिंग के लिए स्टार्ट करते हैं, टर्मिनल ग्रुप से चालू करते हैं। हाइड्रोक्सी और मिथाइल में खाली एच को देखेंगे कि एन के बाद आता है, ये सुनो, एच एन के पहले आता है, Yes, सॉरी sir. एच एन के पहले आता है। 13, टेल मी हाउ मेनी Option D, Delhi. Option D, Anubhav. डी दिल्ली नहीं होगा, एच एम के पहले अरब आएगा, से- क्या Option करते हो? C, Akshat sir. कैलकाटा, आर ऑफ सुरेखा। सी होगा तो। डी दिल्ली कौन बोल रहा है यार? मतलब सिंपल क्वेश्चन में 12 बजा के आ जाओगे। कितने लोग डी दिल्ली बोले हो? नाम बताओ, डरने का नहीं, नाम बताओ। डी बोले हो तो उससे थोड़ा सा गलती से- अक्षय अग्रवाल. और कितने लोग सी बोल रहे हो? आर ऑफ सुरेखा। Shubham Agarwal. Akshat sir. तो ये समझ में आना चाहिए ना, जो लोग डी बोल रहे हो वो लोग को समझ में आना चाहिए कि डी क्यों नहीं है। अरे भाई नेचुरली एच और एम में एच अल्फाबेटिकली पहले आएगा, सिंपल। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 15 ऑप्शन डी। Option डी, A. आर ऑफ सुरेखा। A. Option D, Akshay Agarwal. 15 D. is again very simple. 15 is again very simple. नेचुरली डबल बॉन्ड को लेकर के लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, वहां जाओ यहाँ जाओ, एक ही बात है। कम ऑन, एक ही आंसर आना चाहिए सबका, क्विकली। Option D. डी, आर ऑफ सुरेखा। Option D, Shubham Agarwal. How many of you Akshay got 15 Agarwal. D Delhi right? How many of you got 15 D Delhi right? Akshay Agarwal. Shubham Agarwal. Akshat sir. Yet again 15D must have been the common answer. We want to move on 16. सर व्हाट अबाउट नंबर 14? 14 आप तो सर नहीं करें। The 14. अच्छा 14 एक बार देख लेते हैं। 14 भी ऐसा कोई बहुत हाई फाई नहीं है, डबल बॉन्ड या डिसाइडेड है कि मेरा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो ऐसे जाऊंगा 4 ब्रोमो पेन 2 इन कर दूंगा, और क्या है? Option मिथाइल। A. Akshat sir. ऑप्शन डी। डी, आर ऑफ सुरेखा। Option D, Akshay Agarwal. डी राजन। 14D, D, 14D, अनुभव। 14 का ए कौन बोल रहा है? 14 का ए कौन बोल रहा है दोस्त? कहाँ से ए होगा? 14D। How many of you got 14 का डी राइट? आर ऑफ सुरेखा। Akshay Agarwal. राजन नो। 14 तो मेरे को लगता है सबका राइट होना चाहिए यार। 14 जैसा क्वेश्चन तो मतलब एकदम फ्री और स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है। चलो 16 देखते हैं, 16 देखते हैं। बी बॉम्बे। 16A. देखो यहाँ पर भी वही है, रूट नेम तो इसका साइक्लोहेक्सेन है। अब ये 1 1 2 भी ले सकते थे, जैसे 1 और 2 मेरा 4 आएगा, और ये 2 1 1 भी ले सकते थे, ये भी 4 आएगा। ये 1 2 2 मेरा 5 आएगा, और 2 2 2 1 मेरा 5 आएगा। तो स्लोएस्ट सम रूल के हिसाब से मेरा
ए और बी दोनों 4 आता है। अब ए और बी में डिसाइड करो कौन सा राइट है, कम ऑन। बी A आरव A सुरेखा। A शुभम अग्रवाल। बी आरव सुरेखा। ऑप्शन जो ए लोग श्रेयस ए बोल रहे हो वो लोग जान लो, डाई ट्राई बी। का डी और टी काउंट नहीं होता है। ऑप्शन बी डाई अक्षय ट्राई का अग्रवाल डी और टी, दिस इज नॉट टेकन अल्फाबेटिकली, माय गुडनेस, ये एकदम क्लियरली मैं बताया हूँ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में साइक्लो का सी लेते हैं पर डाई ट्राई का डी टी नहीं लेते हैं। अनुभव भाई, और कौन कौन ये बोला था? सर नमन। और कौन ये बोला था? शुभम। ई आएगा पहले। डाई ट्राई का डी और टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हैं। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। हाँ सर। ओके सर। टू इथाइल पहले आना चाहिए, टू विल कम बिफोर एम। 17 17 ना थोड़ा सा एक एक्यूट टाइप का प्रॉब्लम है। मैं 17 में सारे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। 2,2 डाइमिथाइल 4 पेंटीन ऐसा होगा, 1 2 3 4 5, 2,2 डाइमिथाइल 1 2 3 4 पेंटीन। पहला बात तो ये नाम ही गलत है, बिकॉज इसको हम लोग को प्रेफरेंस देना चाहिए था। 4 डाइमिथाइल पेंटीन, यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं ये समझूंगा पेंटीन एक नंबर पर है और ये ऐसा है। मेरे को लग रहा है दोनों एक ही कंपाउंड है, मेरे को लग रहा है दोनों एक ही कंपाउंड है। एक बार देखो तो Yes, sir. हाँ पर ना डबल सिमेट्रिकल बॉन्ड को पोजीशन छोटा देते हैं, डबल बॉन्ड को पोजीशन हमेशा छोटा देते हैं, डबल बॉन्ड को हमेशा छोटा पोजीशन देते हैं। दैट इज द रूल ऑफ द गेम। पाई बॉन्ड जब एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 कार्बन दिख रहा है मेरे को, टोटल 7 कार्बन दिख रहा है। नियोपेंटाइल ग्रुप ये वाला है। विनाइल अभी मैं बता दूंगा, एक दो क्लास के अंदर में बता दूंगा। विनाइल मतलब डबल बॉन्ड वाला ग्रुप। तो इसका आंसर बी होगा। जिन लोग का नहीं हुआ है कोई बात नहीं है, देयर समथिंग व्हिच यू लर्न विद टाइम। आइसोप्रोपाइल 2 ब्यूटेन ऑप्शन सी जो है, नेचुरली आइसोप्रोपाइल 2 ब्यूटेन इज अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ नेम। 2 आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन तो फिर भी मैं ऐसे लिखता, सी का नाम भी मेरे को गड़बड़ लग रहा है। और 2,2 डाइमिथाइल 3 पेंटीन में जो चौथा वाला कंपाउंड है 2,2 डाइमिथाइल 3 पेंटीन में, मेरे को ना टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लिखता है पर वैसे विनाइल ग्रुप नहीं दिखता है। एक्चुअली विनाइल ग्रुप उसमें भी दिखता है, 4,4 डाइमिथाइल पेंटीन में भी दिखता है विनाइल। विनाइल ये एक्चुअली अलाइल है। 2,2 डाइमिथाइल पेंट 3 बट अगेन वहां पे नाम पेंट हुए हैं। 17 ना एक बार हम लोग क्रॉस करके रखते हैं, 17 में एक बार देखता हूँ। 17 में मेरे को लगता है कुछ कंफ्यूजन है, एक बार 17 थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे बाद में। 18 एलिन भी एक चीज है जो कि तुम लोग पढ़ोगे। मैं एक बार एलिन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एलिन में एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर मान लो मैं एलिन अभी ड्रॉ कर दिया, दिस इज एलिन, अभी मैं एलिन ड्रॉ कर दिया, अब आंसर बता सकते हो इसका? सर ऑप्शन बी ऑप्शन बी आरव सुरेखा। Option B. बिल्कुल अक्षय बिल्कुल अग्रवाल correct, actually भी। ऑप्शन तो एलिन अगर किसी को नहीं पता है तो दैट इज अ प्रॉब्लम, बट ट्रस्ट मी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का एक क्लास में एलिन के बारे में इतना बताऊंगा, यू नो दैट विल नो एवरीथिंग अबाउट एलिन। फॉर द टाइम बीइंग एलिन इज बैक टू बैक पाई बॉन्ड एंड यू नो इन दिस केस ये कार्बन sp2 है, बीच वाला कार्बन sp है। आई थिंक दिस इज प्रीटी विजिबल। मैं एक बार वापस एलिन बना सकता हूँ। एलिन इज लाइक CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों sp2 बीच वाला sp। 19 which cannot be represented by 19A resonating structure, A dimethyl ether। ए नाइट्रेट ए कार्बोक्सिलेट हो सकता है, टॉल्यूइन में रेजोनेंस के जैसा कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, वो भी तुम लोग पढ़ोगे। 20 इज इपॉक्सी कंपाउंड, 20 इज इपॉक्सी कंपाउंड। डी। साइक्लिक ईथर का एक और नाम होता है ऑप्शन डी इपॉक्सी। डी। साइक्लिक ईथर का एक और नाम होता है इपॉक्सी कंपाउंड। साइक्लिक ईथर है, ये देखो साइक्लिक ईथर है, दिस इज साइक्लिक ईथर। ये एक साइक्लिक ईथर है, इसको हम लोग इपॉक्साइड भी बोलते हैं, इपॉक्साइड बोलते हैं, इपॉक्सी कंपाउंड बोलते हैं। तो द रूल ऑफ द गेम है जैसे इसको नंबरिंग करके इसको हम लोग 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे। इसका आंसर डी दिल्ली होगा। ये भी एक अलग तरह का कंपाउंड है, मे बी इसके बारे में बात अभी तक नहीं की है, बट सूनर देन लेटर आई वुड हैव स्पोकन अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिलेट इट टू बीइंग अ साइक्लिक ईथर? ये साइक्लिक ईथर समझ में आ रहा है सबको बच्चे लोग? यस सर। यस सर ईथर में जैसे एक बायोवेलेंट ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर भी है, पर ये साइक्लिक ईथर है। साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड भी बोलते हैं और ये 1 और 2 कार्बन के बीच में इपॉक्साइड है, इसको 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे। 21 में वापस ई और जेड का झमेला है। मैं देखता हूँ ई और जेड के बिना इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं।
नेचुरली इसको 1 2 3 4 5 6 7 ही बोलेंगे. इट्स गोइंग टू बी हेप्ट 2 इन 4 आइन, हेप्ट 2 इन 4 आइन, हेप्ट 2 इन 4 आइन. ए और डी दोनों हो सकता है. अभी मैं बोल देता हूँ ये ई है क्योंकि ये एच ऊपर और नीचे है. ई फॉर एनिमी उल्टा होता है. ई फॉर एनिमी जैसे याद रखो, बाद में इसको ट्रांस कंपाउंड में पढ़ाऊंगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बाद में ही समझ में आ जाएगा. अभी दिक्कत है थोड़ा सा. अभी किसी को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ई दे रहा था तो मैं आंसर ए बता दे रहा हूँ, बट नेचुरली दिस समथिंग विल लर्न व्हेन द टाइम इज राइट. डाइपोल मोमेंट इज शोन बाय नेचुरली डाइपोल मोमेंट. ये ट्रांस अभी पढ़े नहीं हो, ये पढ़ोगे तब समझ में आएगा. ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का पार्ट है. पर यहाँ पर 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन में समझ में आता है कि ये दोनों क्लोरीन का हम लोग अगर हम लोग नेट डाइपोल निकालेंगे तो ऑप्शन ए हिसाब से आ जाएगा. नेचुरली 1 4 डाइक्लोरो का नहीं होगा बिकॉज ये मैं डाइपोल में पढ़ाया था. ये 1 4 में कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर ऑप्शन ए देख के समझ में आ जाता है. बी और डी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में समझ में आएगा. हाउ मेनी फिगर 22 का राइट बाय द वे. आरव सुरेखा. अक्षय अग्रवाल ये दिस इज एज सिंपल एज यू गेट. 23 तो एज सिंपल एज यू गेट. You know about neopentane quickly. ये तो मेरे को लगता है सबका हो गया होगा. ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए How many you got 23 का A right? ऑप्शन ए अनुभव 23 प्रताप ऑप्शन ए शुभम अग्रवाल. Again, 24 is Akshay very Agarwal. simple. 24 is very simple. 24 is very simple. Who will tell me what is the right answer for 24? ए. सर ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए Obviously, and how many of you got it right? आरव सुरेखा. शुभम अग्रवाल. प्रताप अक्षय अग्रवाल Okay, only if you tell me your name, I'll go by you. I'll want to hear your name. It's really surprising that you know there's a very little participants from the girls right now. Vansika, Radhika, Meghna, who else? I hope you are able to attempt these questions and I'll seek your participation in future. 25. ए अक्षय अग्रवाल ऑप्शन ए अक्षत सराफ ऑप्शन ए ऑप्शन ए शुभम. 25. How many of you got A right? आरव सुरेखा. शुभम अग्रवाल. प्रताप अक्षय अग्रवाल Again, I am a little sorry to disappoint you. जब ये पाई बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप जैसा है तो तुमको इसको 1 2 लेना ही पड़ेगा. मेरा बात समझ में आ रहा है. इसको 1 2 लेना ही पड़ेगा. तो ये 1 2 3 हो गया और इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरोसाइक्लोइन. तो तुम लोग क्या यही बोल रहा था क्या? यस सर यस सर ए I'm sorry. तब ठीक है. यही होगा. ठीक है. यू आर राइट. 25 A. 26 ए. अक्षय अग्रवाल ए अक्षत सराफ How many of you got 26 का A right? आरव सुरेखा. 26 ए शुभम अग्रवाल. अक्षय अब यहाँ अग्रवाल पर क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम लोग मेन लेकर के यहाँ पे 1 2 3 लेंगे. C, डाइमिथाइल हो जाएगा. 26 A आगरा राइट. 27 में ना एसिटोनाइट्राइल में sp2 नहीं होता. ये जान लो. एसिटोनाइट्राइल एक कंपाउंड होता है. क्या होता है फॉर्मूला एसिटोनाइट्राइल का? कौन बताएगा मेरे को? एंड हाउ मेनी यू गॉट इट राइट? आरव सुरेखा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटोनाइट्राइल? Sir, H3C, then there is a single bond carbon and OOH. नो. Sorry, देखो, sir. HCC and then C triple bond N. हाँ. I wanted people to solve it without knowing acetonitrile because acetic acid सबको पता है. एसिटिक एसिड सबको पता है. ये मैं बताया हूँ 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp2 है. एसीटोन सबको पता है. एसीटोन में भी इसका 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp2 है. और एसिटामाइड भी पता होना चाहिए. बिकॉज एसिटामाइड इज एसिटामाइड. RCONH2O या कोई भी CH3CONH2O. तो इवन इफ यू डिड नॉट नो अबाउट एसिटोनाइट्राइल, ये कार्बन का 3 सिग्मा, ये कार्बन का 4 में से देखो पाई तो काउंट नहीं करते ना. सिग्मा तो 3 3 3 करके 3 sp2 है. तो BCD में sp2 है. इससे तुम BCD को रूल आउट करके A टिक कर सकते थे. Obviously, you know, a better approach is if you know acetonitrile, जहां पर द फॉर्मूला है CH3CN, ये कार्बन sp3 है और ये सबको समझ में आना चाहिए sp है. 28 is right from my discussion. CnH2n2 ONO2 बोलो क्या होगा? 20 ए
A A. carboxylic acid. A Carboxylic carboxylic A. acids. और क्या हो सकता था, और क्या हो सकता था? Esters. 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 बार बार बताया हूँ, सबको बता दिया हूँ। और आज मैं टोटोमेटिज्म में स्टार्ट कर दिया हूँ हावड़ा में, बाकी लोग को भी अगला क्लास में थोड़ा टोटोमेटिज्म पढ़ के आने का जरूरत है। अब से रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। ये बिल्कुल डिटेल मेरे क्लास के नोट्स में ही है। CnH2NO2 acid or ester. 28A, how many of you got it right? Arav Sureka. अक्षय अग्रवाल शुभम अग्रवाल अनुभव भारती। अक्षत एंड सराफ। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन 29, ये 2 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, तो इथाइल ब्यूटानोएट लुक्स गुड। ये हमेशा टर्मिनल कार्बन से काउंट करते हैं, तो 3 मिथाइल ब्यूटानोल लुक्स गुड। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol। नेचुरली ये ऑप्शन नंबरिंग सी। का जो तरीका है ये गलत है। ऑप्शन सी। Option C. ऑप्शन Option सी। C. लोग ऐसे करेंगे, इसको 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोल करेंगे, है ना? तो ये नाम गलत है, हाँ, मतलब सर। ये आंसर राइट है। हम इसको 23 का सी राइट, 29 का सी राइट। अक्षय शुभम अग्रवाल अग्रवाल प्रताप। अक्षत सराफ। Now you can take a minute, very quickly count how many you got right out of 29. A score of 25 or above is very good because you're doing it for the first time. 25 or above is excellent. Anyone who got 25 or above? Sir Arav Sureka. 29. शुभम Arav अग्रवाल got all right, 29 correct. Amazing. No. Great job. Or सर 27 अक्षय अग्रवाल Akshay Babu got 27 now, which is also amazing. And शुभम अग्रवाल 21 yes, please, your name is? 19 शुभम अग्रवाल 20 above is good. Sir So anyone? Anubhav 23. 23 Anubhav, सर 23 23 अक्षत। 23 Akshat. 22 Laksh. If I'm missing out on any name, you know, in another half a minute, you'll want to tell me, because people who score good and respond in the online class, obviously, you know, are going to be in my good books and are going to be rewarded. So I have 5 names here. Anyone, you know, who has scored more than this? Sir, 23 Shreyas Mishra. 21 शुभम अग्रवाल Shreyas. Sir, Shreyas Mishra. 23. Shreyas नाम है ना तेरा? हाँ, yes sir. और कौन बोला 23? शुभम 21 मिश्रा। शुभम 21 शुभम अग्रवाल शुभम अग्रवाल। So please tell me if I'm missing out on any name. Less than 20, you know, obviously you need to revise IUPAC nomenclature one more time. And as I told you, it's not like we're done with nomenclature. At every opportunity, you know, I'll give you questions, we'll want to discuss it. But yet again, we'll not go crazy naming all organic compounds. We'll limit it to the real exam questions and the ones which feature in the regular textbook. And move on in life in the sense there's a lot of organic chemistry to be learnt and taught. Next time, before I meet you, I would want you to be a little more prepared with isomerism and tautomerism in particular. If you want to make progress, full exam खत्म हो गया है, तो पूरा general organic chemistry, starting from NCERT, पूरा general organic chemistry, even NCERT से ना nucleophile, electrophile, addition, substitution, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, एक राउंड पढ़ के रखो। और पढ़ने का जरूरत है, और क्वेश्चन चाहिए। अभी तो खाली थ्योरी है, अभी क्वेश्चन नहीं चाहिए। और थ्योरी चाहिए, किताब का नाम पूछना है। आई एम ऑलवेज एट योर हेल्प, यू कैन ऑलवेज पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। फॉर द टाइम बीइंग, thank you so very much for attending the class online. Stay happy, stay healthy, and I'll see you at the next opportunity with more questions on IUPAC nomenclature in the online session. ठीक है बच्चे लोग, मिलते हैं। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, बाय sir. सर Bye, Thank you, sir. sir. Bye. गुड नाइट Bye sir. Good night sir. Shubhratri sir. शुभ रात्रि, गुड नाइट।